الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ ہر قسم کی تعریف اور ساری خوبیاں اس خلاق دو عالم کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے کائنات کا مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام پر، خاص کر اس کے آخری رسول تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کی تلاوت کی ہے۔ یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ سبق دیا ہے کہ انسان کو، ایک مسلمان کو، کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس کے زندگی کا مقصد کیا ہے، انسانوں کے مقصد حیات کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے توحید کا سبق دیا ہے کہ اگر ایک انسان کلمہ شہادت کا گواہی دیتا ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے تو اس کے بعد ایک مسلمان پر، ایک مومن پر یہ لازم ہے کہ اس کی زندگی جو گزر رہی ہے وہ توحید کے اندر گزرنی چاہیے، توحید پر گزرنی چاہیے۔
इंसान की जिंदगी के अंदर अगर तौहीद है तो सब कुछ है। अगर हमारा दामन तौहीद से खाली है तो हम कितनी भी इबादतें कर ले, नेकियां कर ले, हमें ऐसे नेकियां करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाता है, अम्मन युजीबुल मुजतर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, क्या है मेरे बंदो, जब तुम बीमार होते हो, तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत, कोई तकलीफ आती है, तुम किसी परेशानी के अंदर दाखिल होते हो, ऐ मेरे बंदो तुम पुकारते किसको हो? अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, परेशानियों के अंदर, मुसीबतों के अंदर मेरे बंदो तुम पुकारते किसको हो? अइलाकुहुम मअल्लाह, क्या है तुम्हारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई रास्ता? कलीलन मा तज़क्करून, तुम कम ही नसीहत हासिल करने वाले हो। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, तौहीद का दर्स देता है, क्या है मेरे बंदो, जब तुम किसी परेशानी के अंदर मुब्तला होते हो तो तुम पुकारते किसको हो? क्या अल्लाह के अलावा कोई है इस रुए जमीन पर जो तुम्हारी पुकार को सुने, तुम्हारी मदद को सुने? आज हमसे बहुत से मुसलमान हैं जो अपने ईमान को, अपने आप को अहले तौहीद कहते हैं, अपने आप को पक्का और सच्चा मुसलमान कहते हैं, मस्जिद में आते हैं, अपने जमीन को अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाते हैं, अपने जमीन को खम करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो मज़ारों पर चादरें चढ़ाते हैं, मज़ारों पर अपने जमीन को खम करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा बहुत से ऐसी हस्ती को पुकारना शुरू कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, क्या है मेरे बंदो, जब तुम कोई परेशानी और मुसीबत के अंदर होते हो, तुम्हें पुकारना किसको चाहिए? तुम पुकारते किसको? तुम्हें पुकारने का सलीका नहीं आता है। वो अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया है, वो अल्लाह जो तुम्हें रोजी देता है, वो अल्लाह जो तुम्हें सेहत और आफियत से नवाजता है, उस अल्लाह को छोड़कर तुम गैरुल्लाह की इबादत करते हो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ सबसे बड़ा धोखा है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की उलूहियत में सबसे बड़ा धोखा है। आप अगर तौरात को उठाएंगे, जो तौरात है मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी, उस तौरात के अंदर भी तौहीद का जिक्र है। इंजील के अंदर जो है ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी, उस इंजील के अंदर भी तौहीद का जिक्र पाया जाता है। और हिंदू धर्म के जो लोग हैं, उनका जो ग्रंथ है, जो वेद है, उसके अंदर भी तौहीद पाया जाता है। हमारे कुरान के भी अंदर तौहीद मौजूद है। लेकिन अगर ईसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात पर, इंजील पर अगर ईमान न लाए तो उनका कसूर नहीं है। ज़बूर पर अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम अगर उस पर ईमान न लाए, उसकी तौहीद का इनकार करे, तो ये मूसा अलैहिस्सलाम का कसूर नहीं है, ये उनकी कौम का कसूर है। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती हैं, अगर कुरान को समझकर कुरान के अंदर जो तौहीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पिरोया है, अगर मुसलमान उस पर अमल ना करे तो ये कुरान की गलती नहीं है, मुसलमानों की गलती है। तौरात के अंदर आज जो वाक़या आज भी नकल है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती का सफर कर रहे थे, जंगल की तरफ निकलते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उस जंगल के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि एक बहुत बुजुर्ग हस्ती है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत किया करती थी उस जंगल के अंदर, तन्हाई के आलम में। लेकिन इत्तेफाक से मूसा अलैहिस्सलाम उस बुजुर्ग के पास पहुंच जाते हैं, सलाम करते हैं। वो बुजुर्ग सलाम का जवाब देता है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ नेक दिल इंसान, ऐ अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा, अगर तुम्हें कोई ख्वाहिश हो, हम तुम्हारी खिदमत करना चाहते हैं, मुझे बरजस्ता बतलाइए। तो बुजुर्ग मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मुझे इस जंगल के अंदर, बयाबान जंगल के अंदर कोई खाना देकर चला जाया करता था, कोई पानी देकर चला जाया करता था। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम,
मुसलसल लगातार 3 दिन हो चुके हैं, मुझे ना खाना मिला है ना पानी मिला है। ऐ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर तुम्हें कोई पानी मिले, कहीं पानी मिले तो मुझे पिला दो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगल से निकलते हैं, तलाश न पानी की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पानी नहीं मिलता है। वापस उसी बुजुर्ग के पास पहुंचते हैं, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मैंने इस जंगल को छान मारा लेकिन पानी पीने के लिए नहीं मिला। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो बुजुर्ग कहते हैं कि ऐ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जाओ इस जंगल से बाहर बस्ती के अंदर किसी बस्ती से मेरे लिए पानी का एक प्याला लेकर आओ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं भूख तो बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन मैं 3 दिन से पानी नहीं पिया हूं। जाओ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो पानी लेकर आओ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगल से बाहर निकलते हैं, बस्ती का सफर करते हैं। बस्ती का सफर करने के बाद है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पानी मिलता है, एक प्याला पानी लेकर आते हैं। जैसे उस बुजुर्ग के पास मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी का प्याला लेकर पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि उस बुजुर्ग के ऊपर गशी तारी होती है। गशी खाकर वो बुजुर्ग जमीन पर गिर जाते हैं और जमीन पर गिरते ही उनकी रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवाज कर जाती है। वो बुजुर्ग की वफात हो जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बुजुर्ग के पास पहुंचते हैं और देखते हैं, उसको हिलाते हैं और देखते हैं, क्या पता चलता है कि इनकी रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवाज कर चुकी है, इनका इंतकाल हो चुका है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी का प्याला उठाकर जमीन पर पटकते हैं और अपने चेहरे को आसमान की तरफ करते हैं और अपने रब से फरियाद करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलीमुल्लाह थे, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डायरेक्ट बातें किया करते थे। कहा, ए रब्बे कायनात, तुम्हारा कैसा इंसाफ है, तुम्हारा कैसा जजमेंट और फैसला है। एक आदमी जो जब से उसने होश संभाला तुम्हारी इबादत करता रहा, नमाज को पढ़ता रहा, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ तुझी को पुकारता रहा, लेकिन तेरा कैसा इंसाफ है कि उन्होंने 2 घूंट पानी मुझसे मांगा और ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने उसको मौत के घाट उतार दिया। ये तेरा कैसा इंसाफ है। आसमान से आवाज आती है, ऐ मूसा, अपनी जुबान को तू लगाम दे दे, तुझे नहीं मालूम ये बुजुर्ग को जब से ये बुजुर्ग ने होश संभाला, ऐ मूसा, इसको खाना कौन देता था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, है रब तू खिलाता था। कहा, है मूसा, इसको इस जंगल के अंदर पानी कौन पिलाता था। कहा, है अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू पानी पिलाने वाला था तो ही पिलाता था। कहा, है मूसा, जब इस बुजुर्ग को आज खाने की जरूरत पड़ी, आज पानी पीने की जरूरत पड़ी, तो ऐ मूसा, ये मुझे छोड़कर तुझे पुकारने लगा। ऐ मूसा, इन्होंने पानी मुझसे न मांगकर तुझसे सवाल किया। ऐ मूसा, मैं पूरे कौम को दिखाना चाहता हूं, मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने इसको मौत के घाट उतार दिया। क्या है, ऐ दुनिया वालों, देख लो, किसी पैगंबर के पास, किसी नबी के पास इतनी ताकत नहीं है किसी इंसान को एक घूंट बगैर अल्लाह की मर्जी के पिला सके। ये तौहीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तौरात के अंदर ये अल्फाज आज भी मौजूद है। जो बुजुर्ग अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर मूसा को पुकारा पानी के लिए, अल्लाह ने कहा, है मूसा, जब से इन्होंने होश संभाला, इसको पानी मैं पिलाता था, खाना मैं खिलाता था, लेकिन ऐ मूसा, आज इसकी निगाह तुझ पर पड़ गई। आज इन्होंने पानी का सवाल मुझसे नहीं किया, तुझसे किया। ऐ मूसा, मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि किसी नबी के पास भी, उस नबी के पास भी इतनी ताकत नहीं है जो नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डायरेक्ट बातें किया करता है, जो कलीमुल्लाह का लक़ब जिनको दिया गया है, उस नबी के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि किसी इंसान को एक घूंट पानी पिला सके। मेरे भाइयों, ये तौहीद है। और आज हमारा भरोसा किस पर है। हमने हाथ में कड़ा पहन लिया, कमर पे धागा बांध लिया, घर के दरवाजे पर मिर्ची और लेबू लटका दिया, गाड़ियों में मिर्ची और लेबू लटका दिया, और हमने समझ लिया कि हमारे बरकत का सामान है। मेरे भाइयों, ये शिर्क बिल्लाह है। अगर हमारा अकीदा, हमारा ईमान इन सारी चीजों पर है, तो ये जान लो कि हमारा ईमान खतरे के अंदर है, हमारा ईमान काबिल कबूल नहीं है। एक सहाबी आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जाना है, मेरा रास्ता बहुत दूर है, मुझे जाना है बहुत दूर, लेकिन मुझे 2 टोक के अंदर बता दीजिए, तौहीद किसको कहते हैं। आज हम मुसलमानों का तौहीद
हमारा ईमान तौहीद से खाली है, हमारा दिल तौहीद से खाली है। वो सहाबी रसूल आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जाना है काफी दूर, और मुझे ये बतला दीजिए दो टोक के अंदर कि तौहीद किसको कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इदा सअलता फसअलिल्लाह व इजा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। क्या है मेरे सहाबा, जब भी तुम्हें कुछ सवाल करने की जरूरत आए तो तुम अल्लाह से सवाल करना, जब तुम्हें मदद मांगने का वक्त आए तो अल्लाह से मदद मांगना। दो टोक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद को सिखा दी। आज हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, चादर लेकर हम दरगाहों पर पहुंच जाते हैं। आज हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, हमें ये नहीं मालूम कि हमें जिंदा को सहारा भी नहीं लेना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा, और हम उस मुर्दे का सहारा लेते हैं जो मनोमन मिट्टी के अंदर पड़े हुए हैं, हम उसको पुकारते हैं। वो बेचारे खुद मुहताज हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को कहा, इदा सअलता फसअलिल्लाह व इजा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब तुम्हें सवाल की जरूरत आए तो तुम अल्लाह से सवाल करना, और जब मदद तलब करने की जरूरत आए तो सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करना। मेरे भाइयों, ये होती है तौहीद, इसको कहते हैं तौहीद। अगर इंसान तौहीद पे मरता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत के अंदर जाएगा। लेकिन अगर तौहीद है, तौहीद का इकरार करता है अपनी जुबान से, लेकिन वो शिर्क भी करता है, मज़ारों पर चादरें भी चढ़ाता है, मज़ारों का सजदा भी करता है, गैरुल्लाह की इबादत भी करता है, तो उसकी सारी की सारी इबादतों पर पानी फिर जाएगा। मेरे भाइयों, हम ये सोचते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन डायरेक्ट नहीं सुनता है, उसे सुनने के लिए सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है। आज बहुत से ऐसे मुसलमान हैं, बरजस्ता कह देते हैं कि अल्लाह तक अपनी आवाज को पहचानने के लिए हमें किसी वसीले की जरूरत पड़ती है, और मिसाल क्या देते हैं कि हमें छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। मेरे भाइयों, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हमें छत पे जाने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कादिर मुतलक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अगर वसीले की जरूरत है तो फिर उसकी कुदरत का क्या कमाल है, फिर उसकी कुदरत में क्या रह गई है। अगर हमें सीढ़ियों की जरूरत पड़ेगी, वसीले की जरूरत पड़ेगी, तो अल्लाह का मतलब हमें कुछ नहीं है। एक मर्तबा हम कहते हैं अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता है। एक मर्तबा औस बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी खौला बिनते सालबा से ज़िहार कर लिया था। ज़िहार कर लिया था खौला बिनते सालबा से। उनके शौहर औस बिन सामित ने, और उस दौर के अंदर, अरब के अंदर ज़िहार कर लेना ऐसे होता था, उस दौर के अंदर तलाक समझा जाता था कि कोई शख्स, कोई इंसान अपनी बीवी से अगर ज़िहार कर लेता है तो जैसे आज के दौर में तलाक है, वो तलाक के मानिंद हो जाया करता था। हदीस के अल्फाज हैं कि औस बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अंता अलैया का ज़हर उम्मी, कि तुम अपनी बीवी से कहते हैं, खौला बिनते सालबा से वो सहाबी कहते हैं, उनके शौहर कहते हैं, अंता अलैया का ज़हर उम्मी, कि तुम मेरी अम्मी की तरह मेरे ऊपर हराम हो चुकी हो। खौला बिनते सालबा, उनके शौहर को जब होश हवास आया, वो गुस्से में अपनी बीवी को कह दिया कि तुम मेरी माँ की पीठ की तरह हो। लेकिन जब वो होश में आए, उनका गुस्सा नम हुआ, बारिद हुआ। अपनी बीवी से कहते हैं कि मेरी बीवी, मैंने ये क्या जुमला कह दिया, मैंने तो अपने ऊपर आपको हराम कर लिया। बीवी से कहते हैं, औस इब्न सामित कहते हैं कि मेरी बीवी, जाओ दरबारी रिसालत के अंदर, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाओ, और इस सवाल का, इस मसले का हल लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से वापस आओ। खौला बिनते सालिबा मस्जिद नबी से, मदीने के अंदर मस्जिद नबी से सटे हुए उस हुजरे के अंदर जाती हैं, हुजरे आयशा के अंदर जाती हैं। दरवाजे पे दस्तक देते हैं तो आयशा दरवाजा खोलती हैं। खौला बिनते सालबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सलाम कहती हैं। आयशा कहती हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते हैं, अम्मी आयशा, क्या घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है कि नहीं? कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। आयशा इजाजत दे देती हैं। खौला बिनते सालिबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात
बातें करने के लिए चली जाती हैं। हज़रत आयशा इजाजत दे देती हैं, खौला बिनते सालबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो जाती हैं और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करना शुरू कर देती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर ने अपनी माँ की तरह मुझ पर हराम कर लिया, अपने आप पर हराम कर लिया। मेरे शौहर ने कह दिया अंता लैया का ज़हरे उम्मी, तुम मेरी माँ की पेट की तरह हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने शौहर के लिए हराम हो चुकी हूँ, मेरे लिए कोई मसला निकालिए, कोई तरकीब इख्तियार कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। ऐ खौला बिनते सालबा, तेरे इस सवाल का जवाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास नहीं है, तू जा मेरी दरवाजे से चली जा। खौला बिनते सालबा बार बार तकरार कर रही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दरबार से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ से हमें कोई फैसला नहीं मिलेगा, तो मैं फिर किसके दरबार पर जाऊंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, है खौला, मेरे पास आसमान से कोई वही नाजिल नहीं हुई है। ऐ खौला, तेरे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। खौला बिनते सालबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के घर से निकलती हैं और सीधा मस्जिद नबी में आती हैं, वजू बनाती हैं, 2 रकात नमाज पढ़ती हैं। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद खौला बिनते सालबा का हाथ आसमान की तरफ उठ जाता है, अपने रब से दुआ करने लगती हैं। खौला बिनते सालबा मस्जिद नबी में आती हैं, वजू बनाती हैं, 2 रकात नमाज पढ़ती हैं। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अपने हाथ को अपने रब के सामने उठा देती हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे शौहर ने मुझसे ज़िहार कर लिया है, अपनी माँ की तरह मुझ पर हराम कर लिया है। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तेरे नबी के दरवाजे पर भी गई थी। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तेरा नबी ने भी अपना दरवाजा बंद कर लिया, अपना चौखट बंद कर लिया। ऐ अल्लाह, तू ही मेरे लिए रास्ता निकालने वाला है, तू ही मेरे लिए रास्ता निकाल। अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रही थी खौला बिनते सालबा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं है कि मैं अपने घर से खौला बिनते सालबा को निकाल दिया हूं, यहां से भगा दिया हूं। तो हो सकता है खौला बिनते सालबा अपने घर की तरफ चली गई हो। नबी को आलमुल गैब में मानने वालों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म का गैब मानने वालों, सुन लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरे आयशा और मस्जिद नबी भी बिल्कुल सटा हुआ है। खौला बिनते सालबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे से निकलती हैं और मस्जिद नबी में चली जाती हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं है। उनको तो ये मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि खौला बिनते सालबा मेरे घर से निकली है तो अपने घर गई होगी। यहाँ हम बड़ा आसान है, अपनी जुबान से कह देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं, सारी चीजों का इल्म उनके पास है। मेरे भाइयों, ये अपना अकली दिमाग बंद करो और तौहीद पर गामजन हो जाओ। खौला बिनते सालबा मस्जिद नबी में जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रही हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं है, वो अपने रब से बातें कर रही हैं। इतने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन को भेज दिया। ऐ जिब्रील अमीन, जाओ मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और जिब्रील अमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में आ गए और कुरान करीम की ये आयत नाजिल हुई जो सूरह मुजादिला की फर्स्ट नंबर की आयत है, पहली आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन को देकर भेजा, क़द समिअ अल्लाहु क़ौल अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत जो अपने शौहर के ज़िहार के बारे में आपसे लड़ रही थी, तकरार कर रही थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी बातों को सुन लिया 7वें 8वें आसमान पर। और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मेरा हुजरा छोटा, यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तरा मौजूद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। आयशा फरमाती है दरवाजे के पास जितना दूर है दरवाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो चाहती भी है। आयशा फरमाती है मैं दरवाजे के पास बैठी हुई थी, खौला बिनते सालबा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में क्या बातें चल रही थी, मैं नहीं सुन रहा था, मैं नहीं सुन रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खौला बिनते सालबा क्या बातें कर रहे थे, मैं नहीं सुन रही थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो 7वें आसमान पर मुस्तवी है, जो हर चीज पर कादिर है, 7वें आसमान पर मुस्तवी होने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खौला बिनते सालबा के
को सुनाने के लिए वसीले की जरूरत पड़ती है। आयशा कहती है मेरा हुजरा छोटा था, खौला बिन्त सालिबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें कर रहे थे, मैं हुजरे में बैठी हुई थी। खौला बिन्त सालिबा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मैं नहीं सुन सका कि वो आपस में क्या बातें कर रहे थे, लेकिन सातवें आसमान पर जो अर्श पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्तवी है, यह खौला बिन्त सालिबा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुजादलों को सुन रहा था। और वहां से जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील अमीन आयत करीमा का टुकड़ा लेकर आए गए। क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तस्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा। क्या है मेरे नबी, वो औरत आप यह समझते हैं कि वो अपने घर चली गई है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, वो औरत आपके घर से सीधा मस्जिद नबवी में गई है। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़कर मुझे पुकारा है। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उस औरत की बात को सुन लिया जो तुमसे अपने शौहर के बारे में लड़ रही थी। मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारने के लिए किसी वसीले की जरूरत नहीं पड़ती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो यहाँ पर कादिर है कि अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन को अगर काले रात में काले पहाड़ पे काले पत्थर पे काली चींटी रेंगती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चींटी के पैरों की आहट को भी सुनता है। और हमने रब की समाज को इतना हल्का में ले लिया कि अल्लाह हमारी बातों को डायरेक्ट नहीं सुनता है। मेरे भाइयों, ये अकीदा अपने आप को, इस अकीदे पे ढालो अपने आप को, और अपने जो वहम गुमान में मुब्तला हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन डायरेक्ट नहीं सुनता है। अगर हमारा यही अकीदा रहा तो हमारी दुनिया भी बर्बाद रही है।